ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਕਰੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂਕੁਲ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 25 ਮਈ 2021 ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼। 25 ਮਈ 2021 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ एक कैंपेन ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ यूनिसेफ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ कोविड-19 ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਨਾਓ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ यूनिसेफ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰੀਅਰ, ਯੰਗ ਵਾਰੀਅਰ, ਕੋਵਿਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਲ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਸੋ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਯੰਗ ਵਾਰੀਅਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਯੰਗ ਵਾਰੀਅਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਆ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਚਿਲਡਰਨਸ ਫੰਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ यूनिसेफ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੁਵਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟਨਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ #YoungWarrior। ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਏਮ ਕੀ ਆ ਟੂ ਇੰਗੇਜ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਦ ਔਨਗੋਇੰਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਦ ਕੈਂਪੇਨ ਇਨਕਲੂਡਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨ ਟੂਲਸ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਊਮਰਸ ਫੈਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਨੇ कि ये अच्छे इंपैक्ट होंगे या फिर कोई बैड इंपैक्ट ना हो जाए। तो ये सब प्रॉब्लम करके कुछ पीपल तो इदां दे जिहड़े वैक्सीनेशन करवा ही नहीं रहे, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए क्या है कि रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी है बिकॉज ह्यूज अपनी पॉपूलेशन है, वैक्सीनेशन की क्वांटिटी स्मॉल है तो आपां नूं की है वैक्सीनेशन वास्ते रजिस्ट्रेशन करवानी पैंदी है। तो कुछ लोग जिहड़े इस तरह के ने कि वो आपदी जिहड़ी रजिस्ट्रेशन आ उही नहीं करा रहे बिकॉज वो चाहते नहीं कि वो इस ते वैक्सीनेशन के लिए आपदे आप नूं लाइक उत्थे भेजन, लाइक वो वैक्सीनेशन करवाउण। सो इसलिए भी जिहड़ा यूथ है वो लोगों को मोटिवेट कर सकदा कि तुसीं वैक्सीनेशन करवाओ, इस दे कोई बैड इंपैक्ट नहीं है। मतलब जिस भी तरीके नाल काम करनगे तो ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इस कैंपेन के अंडर। प्लस सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ की है मैंटल हैल्थ सपोर्ट। इस टाइम ते लोगों की जिहड़ी मैंटल हैल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही है बिकॉज देखो कोई पर्सन है उसकी जॉब भी चली गई, प्लस वो पिछले सारिया सेविंग्स भी चले गई या वो फैमिली चो भी कोई मैंबर कोविड-19 करके चला गया। ईवन कि कुछ फैमिलीज इस तरह दी ने इस टाइम जिन्हों की फैमिली के बहुत 3-3 4-4 मैंबर चले गए, तो उन्होंने मैंटल हैल्थ किस तरह का होएगा, उसका स्टेटस की होएगा। प्लस ये है कि हुण अगे भी उन्होंने आपकी हैल्थ भी सफ़र कर सकती है। तो इस तरह जिहड़ियां प्रॉब्लम सारिया हुई ना उन्होंने लोगों की मैंटल हैल्थ को बिल्कुल बर्बाद कर दिता है। तो इन्होंने सब चीज़ों रिजॉल्व करने के लिए किस तरह यूथ जोड़ा अपना रोल प्ले कर सकता, यूथ को ट्रेनिंग दी जा सकती ताकि ये सारिया प्रॉब्लम्स को तो वो रिजॉल्व कर सकन, एड्रैस कर सकन। उस लिए कैंपेन लॉन्च किया गया यंग वॉरियर नाम का जोड़ा कैंपेन आ अपनी इंडिया के अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ ने यूनिसेफ के नाल मिल के इस कैंपेन को लॉन्च किया है। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है, ये भी कोविड-19 के नाल लिंक्ड ही है।
डिपकोविन एक एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट बनाई गई आ। तो किसने बनाई आ? एंटीबॉडी का मतलब की हुंदा है कि जदों कोई पर्टिकुलर बीमारी आपां नूं लगदी है, अपनी बॉडी जो अपनी बॉडी नूं समझ आ गया कि पर्टिकुलर चीज़ इस तरह की है जो अपनी बॉडी नूं इस तरह इंपैक्ट करेगी, क्योंकि अपनी जिहड़ी बॉडी का इम्यून सिस्टम है ना, एक बहुत वड्डा हथियार है अपने कोल। वो इम्यून सिस्टम हर एक चीज़ नूं रिकवर कर सकदा। बस ये हुंदा कि मान लो कोई सोया होया, आपां नूं उहनूं जगाउण दी लोड़ हुंदी है एक बारी, तो जो जाग जाएगा वो आपे उस चीज़ को हैंडल कर लेगा। तो उस तरह ये भी एंटीबॉडीज़ भी इस तरह काम करती अपनी बॉडी के कि जो कोई पर्टिकुलर नवी तरह की बीमारी आती है, इन्होंने पता नहीं होंगे कि इन्होंने मैं किस तरह रिजोल्व करना। एक बारी एंटीबॉडीज़ जनरेट हो गई, एक बारी वो जाग गई, तो उस बार वो बीमारी ना खुद ही टैकल कर लेंदियां ने। तो डिपकोविन एक इदां दी है कि एंटीबॉडीज़ नूं डिटेक्ट करेगी किस तरह किस पर्सन दे विच एंटीबॉडीज़ बन चुकियां ने, बिकॉज एक बारी अपनी बॉडी दे विच एंटीबॉडीज़ जनरेट हो गई तो उस तो बाद वो बीमारी चाहे आपको बाद चो फिर तो आ जाए, बट आप उस बीमारी को हरा देवांगे, क्योंकि जिहड़ियां मेडिसिन होंदियां ना, वो मेडिसिन यही तरह का काम करदियां ने। जिहड़ी अपनी बॉडी दे विच एंटीबॉडीज़ होंदियां ने ना, उन्होंने जगाउण दा ही काम करदियां ने, स्पैसीफिकली आप ये कह सकते हैं। तो डिपकोविन जिहड़ी आ वो इन्हां एंटीबॉडीज़ नूं ही टैसट करेगी, सैरो सर्वे दे विच हैल्प करेगी। किसने बनाया? इसनूं बनाया है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिपकोविन नाम का एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट बनाया। सो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होएगा। The DRDO, Defense Research and Development Organization, has developed an antibody detection based kit जिसका नाम है डिपकोविन। डिपकोविन की फुल फॉर्म भी है अपने को, डिप्स, डी फॉर डिप्स हो गया, DIP डिप्स, VDX COVID-19 LG एंटीबॉडी माइक्रोवेल एलिजा। तो ये सारा एड़ा फुल फॉर्म है। द किट कैन बी यूज फॉर सैरो सर्वे। सैरो सर्वे का मतलब होंगे कि ह्यूज नंबर ऑफ पीपल नूं सर्वे की तरह का उन्होंने देखा रहा कि जी एंटीबॉडी जनरेट हो चुकी कि नहीं हो चुकी, बिकॉज फिर उस उन्होंने परसनस को कोई भी खतरा नहीं होएगा, उन्होंने अगों तो वो बीमारी आएगी तो उन्होंने पता लग जाएगा कि हाँ एक चीज़ पहला भी आई सी, इसनों इस तरह टैकल करना, मतलब उन्होंने बॉडी समझ आएगी, उन्होंने इम्यून सिस्टम समझ आएगा। सो ये जी किट है वो इसे काम नूं करेगी। प्लस ये जी किट है वो स्पाइक्स आप देखते हैं ना, कोविड-19 का जो स्ट्रक्चर बनया होंगे वो उपर स्पाइक्स दियाँ शो होंदियां ने आपां नूं गोल गोल दे उपर, तो जो स्पाइक्स प्रोटीन होंगे उन्होंने भी ये जी हैगी अपने को डिपकोविन वो स्टडी कर सकती है, वो प्रोटीन्स नूं, SARS-CoV-2 वायरस के प्रोटीन्स नूं। सो ये जी इन्फॉर्मेशन है डिपकोविन जिन्होंने बनाया DRDO ने। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है, एक ऑब्विचुअली का क्वेश्चन है, OP भारद्वाज जिन्हों की रिसेंटली डैथ हो गई, हुण कोई पर्सन की डैथ होंदी है, अगर उस पर्सन ने हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो कुछ अच्छा काम किया, लाइक उन्हें अपनी करियर दे विच कोई भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड, म्यूजिक नाल रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई अच्छा काम किया, तो उस पर्सन की वो वाली इन्फॉर्मेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो जेडे ये पर्सन से OP भारद्वाज, उन्होंने अपनी जो फील्ड है, मतलब जिस फील्ड के भी ये बिलोंग करते सी, उस फील्ड के द्रोणाचार्य अवार्ड मिले सी। तो द्रोणाचार्य जोड़े अवार्ड होंगे वो स्पोर्ट्स के कैटेगरी के मिलते हैं। स्पोर्ट्स कैटेगरी के जोड़े गुरु होंगे ने, जिवें आप अपने कोच को जाने, लाइक आप कोई स्पोर्ट करते हैं तो आप अपने कोच को जाने, वो कोचस जोड़े अगर कोई बहुत अच्छा कोच है अपने शिष्य को बहुत अच्छी कोचिंग दे रहा तो उन्होंने फिर एक अवार्ड मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड। सो ये जोड़ा अवार्ड है स्पोर्ट्स कैटेगरी के मिलता है अगर किसी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अलग अलग स्पोर्ट्स होंगे ने, जिमें क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, अलग अलग तरह दी गेम्स हो गई। हुण आप दसना OP भारद्वाज इन्हां चों किहड़ी गेम नूं बिलोंग करदे सी, उसे गेम के कोच बनन करके उन्होंने फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड मिले। तो OP भारद्वाज जिहड़े आ वो बिलोंग करदे सी बॉक्सिंग नूं, बॉक्सिंग के बहुत ही अच्छे कोच हैगे सी जिन्हां दी रिसेंटली डैथ हो गई। तो ये जोड़े फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैगे ने। सो अपना राइट आंसर की होएगा? ऑप्शन बी, बॉक्सिंग। OP भारद्वाज इंडिया के फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी कोच ने बॉक्सिंग जिन्हों की डैथ हो गई है 82 ईयर्स की एज के, मतलब उन्होंने 82 साल के हो चुके सी। जोड़ा इन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड है वो 1985 के, मतलब 1985 के मिलिया। तो इंडिया के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी हैगे सी वो। ही वॉज इंडियाज नैशनल बॉक्सिंग कोच, इंडिया की नैशनल बॉक्सिंग टीम के कोच हैगे सी 1968 तो लैके 1989 तक वो रहे ने। एंड वो नैशनल सिलैक्टर भी रहे ने, जो भी
प्लेयर सिलैक्ट किए रहंदे ने, वो सिलैक्शन कमेटी दे विच भी रहे ने। उन्हां दी कोचिंग दे अंडर इंडिया के जिहड़े बॉक्सर्स आ उन्होंने काफ़ी सारे मैडल जिते, जिवें कि एशियन गेम्स हो गई, कॉमनवैल्थ गेम्स हो गई, साउथ एशियन गेम्स हो गई। इन्हां सब गेम्स दे विच उन्हां दी अगवाई दे हेठ ही, उन्हां दी कोचिंग दे अंडर ही काफ़ी सारिया मैडल जिते गए अपने इंडिया के प्लेयर्स के द्वारा। सो बहुत अच्छा उन्होंने रोल रहा अपने, अगर आप बॉक्सिंग करियर के गल करिए। 1985 उन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड मिले OP भारद्वाज। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है, ये है इकोनॉमी का क्वेश्चन। तो रिसेंटली एक चीज़ न्यूज़ चल रही है काफ़ी कि RBI जी अपनी मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो कुछ सरप्लस फंड ट्रांसफर कर रही है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट को इस टाइम फंड्स की जरूरत है। जरूरत क्यों आ? बिकॉज जो अपनी कंट्री की सिचुएशन चल रही है कि लोगों को रोज़गार नहीं आ, प्लस हैल्थ जो सफर कर रहा है। सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ इस टाइम ये कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, प्लस वैक्सीनेशन नहीं हो रही, टेस्टिंग नहीं हो रही, तो ये ह्यूज जी मनी आ वो चाहिए है। सो ये मनी जी आ वो कितों मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, टैक्सेस हो गए या फिर जो अलग अलग कंट्रीज़ तो उन्होंने ग्रांट्स मिलदियां ने, ਜਾਂ फिर अपनी जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो पैसे देती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी अपने सारे खर्चे निकाल लेंदी है, उस तो बाद जोड़ा भी पैसा बचता है वो सरप्लस होंदा है। तो RBI ने रिसेंटली डिसीजन लिया है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट है, वैसे बहुत ह्यूज अमाउंट है, वो ट्रांसफर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसेंटली 31 मई तक दी, मतलब जुलाई तो लैके 31 मई तक 9 महीनों की जी फंड्स ने वो ट्रांसफर हो जाएंगे हुण RBI तो सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो ये जोड़े फंड्स है वो है ने 99,122 करोड़, 99,122 करोड़ रुपए जोड़े आ ये सरप्लस के तौर पर ट्रांसफर करे जाएंगे RBI तो सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो गया। RBI जी कि अपने इंडिया की सेंट्रल बैंक आ वो ये ट्रांसफर कर रही है मनी एंड ए हायर दैन वट द गवर्नमेंट इट सैल्फ हैड बजटेड। मान लो कि आप डिसाइड किया कि मैनू सिर्फ 100 रुपया आना किसी पर्टिकुलर परसन तो, बट मैनू 200 आ रहा, तो जो मेरी एक्सपैक्टेशन से उन्होंने तो उत्तों मिल रहा ना, यही चीज़ गवर्नमेंट ना हो रही है। जी अपनी फाइनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने अपने बजट की स्पीच के कहा कि जो सरप्लस फंड्स ने 53,511 करोड़, मतलब नियर अबाउट हाफ ही जो उन्होंने मिल रहा वह अद्धा ही क्या सी कि ये ना जी मनी आ ट्रांसफर होएगी गवर्नमेंट को थ्रू RBI। बट RBI ने की है तो असी देवांगे 99,122 करोड़, 99,122 करोड़। सो काफ़ी ह्यूज अमाउंट हैगी आ। बिमल जलान कमेटी है जी उन्होंने कहा कि जी RBI आ उन्होंने अपने को मिनीमम कॉन्टीजेंसी बफर जोड़ा है वो रखना पैंदा। कॉन्टीजेंसी मतलब कोई भी रिस्क वाली सिचुएशन होंदी है उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए RBI को मिनीमम 5.5% ये बैलेंस शीट का आपदे कोल मेनटेन करना पैंदा। ये जोड़े पैसे ने ये सरप्लस होंदे ने, इस सरप्लस मनी वो कदों भी यूज़ कर सकते जो भी कंट्री को जरूरत पवे। सो इन्होंने पैसों के विचों ही कुछ अमाउंट जी वो RBI ट्रांसफर करन जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को। नाउ जो नैक्सट क्वेश्चन है वो भी इसे पॉइंट के नाल लिंक्ड है, इसे टॉपिक के नाल लिंक्ड है। Section 47 of RBI Act 1934 has been in news recently. It relates to which perspective? Regulation of cooperative bank है या फिर ways and means advances है, open market operations है या फिर none of the above। सो जो Section 47 है RBI Act, क्योंकि जो अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने एक एक्ट पास करके बनाया गया सी 1935 फाइनली एस्टैबलिश होया सी अपना RBI। 34 उसका एक्ट आया सी। हुण उस एक्ट के अंडर अलग अलग कंडीशनस गिवन ने, जिवें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स गिवन ने, उस तरह ही RBI एक्ट के अलग अलग सैक्शनस गिवन ने। तो जो Section 47 आ वो गल करता है ट्रांसफर ऑफ सरप्लस फंड्स, मतलब जोड़े RBI को सरप्लस फंड्स होंगे ने उन्होंने फंड्स को इन द टाइम ऑफ कॉन्टीजेंसी कोई भी अनसर्टन कंडीशन है या फिर जो गवर्नमेंट को लोड़ है तो RBI उस सरप्लस फंड को ट्रांसफर कर सकता विद द Section 47 ऑफ RBI एक्ट। सो इन्होंने जो अपने को स्टेटमेंट्स गिवन ने चारों के कोई भी करैक्ट नहीं है तिना बिकॉज जोड़ा ये सैक्शन आ वो लिंक्ड हैगा प्रीवियस टॉपिक के जो आप हुणे डिस्कस करके हटे हाँ, जिसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ सरप्लस फंड्स फ्रॉम RBI टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अपनी ऑप्शन जी होएगी वो होएगी ऑप्शन डी। नन ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट।
इट रिलेट्स टू ट्रांसफर ऑफ सरप्लस फ्रॉम आरबीआई टू गवर्नमेंट। ये मैं तुहानूं ऑलरेडी समझाता कि जिहड़ा सैक्शन 47 आ वो रिलेटेड हैगा है सरप्लस नूं ट्रांसफर करना आरबीआई तो सेंट्रल गवर्नमेंट नूं। वट द सेंट्रल बैंक डज इन दिस केस इज ट्रांसफर। हुण जिहड़ा सेंट्रल बैंक इस केस की कर रहा वो आपदे पैसे जो सरप्लस पई है मनी उसनूं ट्रांसफर कर रहा ना, जो भी उन्हां दी इनकम सी जो उन्हां दा खर्चा सी उहदा जिहड़ा अपना बैलेंस हुंदा है, जिवें मान लो मेरे कोल पैसे हैगे 1000 रुपया, मेरा खर्चा होया 800, मेरे कोल 200 रुपया बच गया, वो मेरा सरप्लस है ना, वो सरप्लस अमाउंट हुण ਜਿਹੜਾ ट्रांसफर हो सकता किसी भी तौर पर, जिवें आपां सेविंग कह सकते हैं, उन्होंने आपां अकाउंट जमा करा सकते हैं, जां फिर आपां किसी पर्सन नूं दे सकते हैं। तो उही केस आरबीआई ने हो रहा जदों आरबीआई अपने सारे खर्चे कर लैंदी है। वो खर्चे किहड़े हुंदे ने, उन्होंने अपनियां प्रोविजन बनानियां बैड डेट्स वास्ते, डाउटफुल डेट्स वास्ते। बैड डेट्स की हुंदे ने, डुबे हुए खर्चे, डुबे हुए कर्जे, लाइक आप किसी को पैसे देते आपको पता उस पर्सन ने आपको पैसे नहीं देने वापस, तो आप बैड डेट्स पा लैंने। जो आरबीआई ये बैड डेट्स वास्ते भी प्रोविजन बना लैंदी आ, डेप्रीशिएशन वास्ते प्रोविजन बना लैंदी आ, आपदे स्टाफ की कॉन्ट्रीब्यूशनस वास्ते बना लैंदी आ, सुपरएनुएशन फंड हो गए, मतलब सारे जिन्ने भी खर्चे करने आ वो खर्चे करन तो बाद एट द एंड आरबीआई को जिन्ने भी पैसे बचते हैं वो सरप्लस होंदे आ, ते सरप्लस जिहड़े आ वो ट्रांसफर कर सकदी आ सेंट्रल गवर्नमेंट नूं ਜਦੋਂ भी उन्होंने जरूरत पवे। सो ये है ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सरप्लस फ्रॉम आरबीआई टू गवर्नमेंट। सैक्शन 47 जिहड़ा आरबीआई एक्ट दा इस चीज़ बारे गल करदा है। नैक्सट क्वेश्चन भी अपने को आरबीआई के नाल लिंक्ड ही है, तो अज अपने को इकोनॉमी के 3 क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट। आरबीआई ने एक जी रिलीज़ की स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट, तो एक क्वेश्चन भी आपने तो ही पूछा गया सी जी ये रिपोर्ट है स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट वो किहड़े इंस्टीट्यूशन ने रिलीज़ की है। सो इसनूं ना तो नीति करदा रिलीज़, ना ही डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर, ना ही एडीबी। इसनूं लॉन्च कौन करदा है, इसनूं रिलीज़ कौन करदा है, वो करदा है आरबीआई अपनी कंट्री का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसनूं लॉन्च करदा है। रिपोर्ट का नाम की है स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट। मंथली रिपोर्ट होंदी है, ये पब्लिश होंदी है, इकोनॉमी का पूरा स्टेटस होंदा है, कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी जीएसटी कलैक्शन हुई है वगैरह वगैरह, वो सब इन्फॉर्मेशन इस होंदी है। सो ऑप्शन भी अपना राइट आंसर हो गया। इंडिया की सेंट्रल बैंक आ आरबीआई वो इस रिपोर्ट में रिलीज़ कर दिया, आप ऑलरेडी देख लिया। मंथली बुलेटिन है ये आरबीआई का। इस रिपोर्ट के रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग अप्रैल का जो मंथ रहा उस जी अपने को आपको पता उस टाइम सैकेंड वेव चल रही है कोविड-19 की, पिछले अप्रैल फर्स्ट वेव चल रही सी, तो कहते जो सैकेंड आ वाला वेव वाला टाइम पीरियड है ये वाला अप्रैल आ, इस टाइम पर जोड़े अपने को इंपैक्ट पे ने इकोनॉमी के वो पहली वेव के कंपैरिजन थोड़े घट है, ठीक है, बट उस तो बाद ज़्यादा हुए ने। पिछली वेव जो हुई सी तो उस टाइम पर आपको पता कंप्लीट लॉकडाउन सी, बिल्कुल कोई भी काम नहीं हुंदा सी, सब इंडस्ट्री सब कुछ बंद पिया सी, बट इस बारी सिर्फ और सिर्फ थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शनस लगिया हुई, वैसे सब कुछ चल रहा है, तो उस करके जो पिछले साल के कंपैरिजन इस साल के अप्रैल के सैकेंड वेव का इंपैक्ट जोड़ा है वो थोड़ा घट पिया है। एंड इन्होंने ये भी हाईलाइट किया इस रिपोर्ट के कि जोड़े जीएसटी कलैक्शनस है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जोड़ा कि कुछ टाइम पहला अपने इंडिया लॉन्च किया गया सी, किस लिए लॉन्च किया गया, इनडायरैक्ट टैक्स के तौर पर, मतलब पूरे इंडिया में एक टैक्स हो सके, खैर वो तो नहीं हो पाया, बट फिर भी एक मैक्सिमम जड़ियाँ 4-5 स्लाइड फिक्स करती उन्होंने भी इन्ना ही टैक्स लगेगा गुड्स एंड सर्विसेज से। तो ये जो जीएसटी का जो तो ये इंप्लीमेंट होया 2016 तो उदों तो लैके हुण तक हाईएस्ट कलैक्शन रही है जीएसटी की अप्रैल 2021। सो ये चीज़ां किसने प्रजेंट कीतियां ने, आरबीआई की रिपोर्ट है स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट, जिसनों वो मंथली बुलेटिन के तौर पर रिलीज़ करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट अपने को जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है एक वोल्कैनो दे। तो रीसेंटली माउंट नियारागोंगो एक नाम का एक जो वोल्कैनो आ वो इरप्ट होया, वो किस कंट्री के इरप्ट होया आप दसना। वैसे जी नॉर्मल टेंडेंसी की अगर आप गल करिए, नॉर्मल टेंडेंसी ये होंगी कि जोड़े अपने 70% ऑफ वोल्कैनोज ने एंड 90% ऑफ अर्थक्वेक्स है वो सारे कित्थे आउंदे ने, वो सारे आउंदे ने पैसीफिक रिंग ऑफ फायर। पैसीफिक रिंग ऑफ फायर मतलब जो पैसीफिक ओशन है वो तो जोड़े कुछ कंट्रीज़ आ जिमें कि अपने एशिया का ईस्टर्न पार्ट हो गया एंड पैसीफिक कंट्रीज़ जिमें कि अमेरिकाज ने उन्हों का वैसटर्न पार्ट्स वो विचकार वाला जो ओशन वाला जगह है उस जगह पर जिन्नियां भी कंट्रीज़ लोकेटेड है उन्होंने कंट्रीज़ के जोड़े अर्थक्वेक्स आउन या फिर वोल्कैनोज से इरप्ट होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होंगी है। तो जिहड़ियां अगर आप ऑप्शनस की गल करिए जापान, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, ये तीनों कंट्रीज़ पैसीफिक रिंग ऑफ फायर लोकेटेड है, तो अपना नॉर्मल जा ये गैस होएगा कि ये
जो भी वोल्कैनो आ वो इरप्ट होया होएगा इन्हां तिन्नां दे विचों एक कंट्री दे विच, बट आपां रॉन्ग है। समटाइम्स बाकी जिहड़े जिवें मैं तुहानूं कहा 70 to 75% ऑफ वोल्कैनोज इरप्ट हुंदे ने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, बट बाकी जिहड़े 25% बचे आ वो बाकी कंट्रीज़ विच भी तां इरप्ट हुंदे ने। तो जिहड़ा माउंट न्यारगोंगो आ ये इरप्ट होया है अफ्रीका दे विच, अफ्रीका कंटीनेंट दे विच एक जिहड़ी कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, तो उस जगह ते ये जिहड़ा वोल्कैनो इरप्ट होया बहुत ज़्यादा इहदे नाल तबाही हुई है। एक तरह का जिवें अग दियां लाइक लेक चलन लग जाती है ना, उस तरह का काम होया कि जो ये वोल्कैनो इरप्ट होया जिहड़ी लावा है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी दे विच बाहर आया, एक अग की फॉर्म विच लेक बन गई जिसने उतों के काफ़ी सारा जिहड़ी जगह है उसनूं तबाह करता। मतलब जिवें मान लो अपना एक विलेज दे विच रह रहे हैं, आप एक पिंड दे विच रह रहे हैं, इक्को दम उत्थे अग आ जाए, ठीक है, मतलब इस तरह जिवें पानी बहता ना उस तरह अग आ जाए तो आपां नूं की होएगा, अपना सारी उत्थे जमीन वगैरह सड़ जाएगी, घर सड़ जाएंगे। तो इस तरह की जिहड़ा इवेंट होया उहदे च काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जान भी गई है, काफ़ी ज़्यादा इन द सेंस कि कोई 7-8 लोग कह सकते हैं कि वो आपदे आप नूं बचा कर रहे थे, भजन की कोशिश कर रहे थे जिहदे करके उन्होंने जान भी चली गई है। सो काफ़ी तबाही की है माउंट न्यारगोंगो। तो हर पासे बहुत वर्स कंडीशन चल रही ने, किसी पासे वोल्कैनो इरप्ट होया है, किसी पासे कोविड-19 का प्रॉब्लम जी वो आई पई है, किसी पासे साइक्लोन आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस टाइम चल रही हैं अपनी कंट्री दे विच। किसी पासे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को है एक वोल्कैनो बारे। तो रिसेंटली एक वोल्कैनो इरप्ट होया है माउंट न्यारगोंगो। ये जिहड़ा वोल्कैनो आप दसना किहड़ी कंट्री दे विच इरप्ट होया, मतलब किहड़ी कंट्री दे विच लोकेटेड है, जापान, फिलीपाइंस, रिपब्लिक ऑफ कोंगो या फिर इंडोनेशिया। तो वैसे नॉर्मल टेंडेंसी की अगर आप गल करिए नॉर्मली जिन्हें भी वोल्कैनोज होंगे ने वो 75 to 80% जिहड़े आ वो इरप्ट होंगे आ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जिहड़ा कि अपने एशिया दा ईस्टर्न पार्ट हो गया, तो अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का वैसटर्न पार्ट जिहड़ा उन्हां दे विचकार वाला ओशन है पैसिफिक ओशन, उत्थे वोल्कैनोज बहुत ज़्यादा आउंदे ने। उन्हां दे विच किहड़ियां कंट्रीज़ आउंदे ने जिवें कि जापान, फिलीपाइन, इंडोनेशिया, ये सारियां कंट्रीज़ इसे रीजन दे विच ही आउंदियां ने। तो आपां नॉर्मल जिहा सोचांगे कि इन्हां तिन्नां दे विचों ही कोई आंसर होएगा, बट बाकी दे जिहड़े आउंदे ने जिवें मैं तुहानूं कहा 75-80% जिहड़े वोल्कैनोज आ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर च आउंदे आ, बट बाकी जिहड़े 20 to 25% बचे आ, 35% बचे आ, वो सारे कित्थे आउणगे, बाकी नेशनस विच भी तां आउणगे ना। तो उस उन्हां 25% दे विचों ही एक कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो जिहड़ी कि अफ्रीका कंटीनेंट दे विच कंट्री है। उत्थे रिसेंटली ये वोल्कैनो इरप्ट होया, काफ़ी डेंजरस वोल्कैनो सी। इस जो वोल्कैनो इरप्ट होंदा है उस बार लावा निकलता है, वो लावा इन्ना ज़्यादा गर्म होंदा है, इत्थे जिहड़ा लावा ना एक अग की फॉर्म च तैर ही रहा, मतलब एक हिसाब नाल एक जिहड़ी लावा की लेक ही वगन लग गई। हुण देखो कि आपां किसी पिंड दे विच रह रहे हैं, अचानक किस तरह उत्थे कोई चीज़ इरप्ट होवे ते वो जिहड़ा अग है वो वहन लग जाए पानी तरह, तो की होएगा, अपनी सारी जमीन सड़ जाएगी, लोगों के घर सड़ जाएंगे। तो जोड़े लोग इतों बचन की कोशिश कर रहे थे ना उन्होंने काफ़ी दी जान भी चली गई है। सो इस टाइम पर अपनी इंडिया की जी नेवी है वो भी हैल्प कर रही है इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, बिकॉज जो अफ्रीका कुछ गरीब कंट्रीज़ ने जिन्हों की हैल्प करने की लौड़ पैंदी है, बिकॉज उन्होंने को इन्ने सोर्सेस नहीं है। सो माउंट न्यारगोंगो नाम का जोड़ा ये वोल्कैनो आ वो इरप्ट होया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होएगा। एज अ एक्टिव वोल्कैनो इन कोंगो। हुण वोल्कैनोज 3 तरह के होंगे ने, एक तो होंदा एक्टिव वोल्कैनो, एक होंदा डॉर्मेंट, एक होंदा जिहड़ा एक्सटिंक्ट। जिमें आप अपनी एग्जाम्पल लैके देखिए कि आप कुछ परसनस होंगे ने, कुछ स्टूडेंट्स होंगे ने जिहड़े बहुत पढ़ते हैं, डेली स्टडी करते हैं, वो हो गए एक्टिव वोल्कैनोज। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिमें अज आ रहा है मैं पढ़ना है, फिर तो उस तो बाद 10 दिन बाद फिर सोचा कि चलो मैं पढ़ना, फिर सोचा चल 4 दिन रेस्ट कर ला, फिर सोचा मैं पढ़ना, वो हो गए डॉर्मेंट जेडे कुछ टाइम बाद जागते हैं। एक होंगे एक्सटिंक्ट, मतलब जेडे छड़ चुके कि मैं तो पढ़ना ही नहीं, बस जेडे बिल्कुल ही छड़ चुके वो है ने एक्सटिंक्ट, मतलब खत्म हो चुके हैं। सो इस तरह 3 तरह के वोल्कैनोज होंगे ने। जोड़ा ये वाला वोल्कैनो जिसकी आप गल कर रहे हैं न्यारगोंगो, ये जोड़ा वोल्कैनो वो है एक्टिव मतलब जो एक्टिव रहा, लगातार फटदा ही रहा कुछ टाइम बाद। सो इरप्ट होया। इंडियन आर्मी ने कॉन्टीनेंट दे विच हेल्प की है, इन्हां दी एक संस्था बनी हुई है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है इंडियन आर्मी दी, एक हैगी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन असिस्टेंट इन प्रोटेक्टिंग सिविलियंस एंड UN ऑफिशियल्स। मतलब जोड़े सिविलियंस हो गए, ऑफिशियल्स हो गए,
उन्होंने उतों बचाने के लिए जी अलग जी पर्टिकुलर संस्था है वो काम करती है, मिशन काम करता जिन्होंने इस नेशन के सिटीजनस नूं हैल्प की है, पीपल नूं हैल्प की है इस क्राइसिस तो बचने वास्ते। हुण अगर आप इस माउंट नियागोंगो की गल करिए जिहड़ा कि वोल्कैनो इरप्ट होया, वो एक एक्टिव स्ट्रैटो वोल्कैनो आ जिहदी बहुत ज़्यादा एलिवेशन मतलब काफ़ी हाइट है, जिवें कि 3470 मीटर की जी हाइट हैगी आ। विरुंगा माउंटेन जिहड़े उस दे नाल लिंक्ड है, एल्बर्टाइन रिफ्ट है उत्थे, क्योंकि अपनी जी अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ उत्थे एक बहुत वड्डी सारी रिफ्ट हैगी। रिफ्ट हुंदा दरार आ जानी जी अपनी जो लैंड आ मतलब अपनी जी धरती आ और एक रिफ्ट बन जाती है ड्यू टू अलग अलग जड़ियाँ अपनिया टैक्टोनिक्स होंदियां ने, प्लेट टैक्टोनिक्स होंदियां उन्होंने करके, तो उहदे नाल एक रिफ्ट बन जाती है। उस रिफ्ट के नाल एसोसीएटेड एक माउंटेन रेंज हैगी सी विरुंगा माउंटेन, उस जगह ते ये जिहड़ा वोल्कैनो लोकेटेड है माउंट नियागोंगो, जिस जो कि इस टाइम इरप्ट होया है अफ्रीका विच। सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो विच ये जिहड़ा वोल्कैनो आ वो इरप्ट होया। वैसे कुछ टाइम पहला आपां डिस्कस कीते आ सुलावेसी आइलैंड्स विच कुछ जिहड़े वोल्कैनो इरप्ट होए सी, तो वैसे नॉर्मली कितने होंगे ने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, बट हुणे अलग जगह पर होया तो आपको पता होना चाहिए। एंड नैक्सट थोड़े लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुसी कमेंट सैक्शन में रिप्लाई करना कि जिहड़े अपने इंडिया विच कुछ वोल्कैनोस लोकेटेड आ, बिकॉज हर जगह पर कुछ वोल्कैनोस होंगे ने। अपने इंडिया किहड़े वोल्कैनोस हैगे ने जो लोकेटेड आ, प्लस कित्थे वो हैगे ने, प्लस एक्टिव ने या फिर डॉर्मेंट ने, वो तुसी आंसर कमेंट सैक्शन में दे सकते हो। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है, एक वैबीनार लॉन्च किया गया, वैबीनार ऑर्गेनाइज किया गया, फाइटिंग द लाइट इनसाइड मेंटल वैलबींग एंड द पैंडमिक। लोगों की मेंटल वैलबींग वास्ते पैंडमिक नू सॉल्व करने के लिए जिहड़ा वैबीनार आ लॉन्च किया गया। सो ये लॉन्च किया गया मई 2021। किसने लॉन्च किया है, किसने इसनू ऑर्गेनाइज किया? बेसिकली इस टाइम पे कोविड-19 करके प्रॉब्लम की आ रही है कि लोगों ने सेविंग खत्म ने, उन्होंने हेल्थ सफर कर रही है, उन्होंने नियर एंड डियर वॉन्स की जी हेल्थ काफ़ी चली लाइक खराब सी, तो वो करके हो सकता किसी की डैथ भी हो गई हो, प्लस उन्होंने सेविंग्स भी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तो मेंटल हेल्थ बहुत सफर कर रही है इस पैंडमिक के टाइम पीरियड से। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मतलब सॉल्व की करना कि थोड़ा जहा उन्होंने गाइडेंस प्रोवाइड करनी उन्होंने जी काउंसलिंग करने वास्ते जो वैबीनार ऑर्गेनाइज किया गया। इसनों ऑर्गेनाइज किया प्रैस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो मतलब जो PIB है प्लस रीजनल आउटरीच ब्यूरो, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। सो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होएगा, बिकॉज बोथ A and B इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो गया। वैबीनार हैगा नाम आप देख ही लिया, फाइटिंग द लाइट इनसाइड मेंटल वैलबींग एंड पैंडमिक, ऑर्गेनाइज होया सी 22 मई नूं। एक्सपर्ट्स ने सुजैसट किए अलग अलग मैथड्स की किस तरह आप मेंटल हैल्थ इशूज़ के नाल डील कर सकते हैं ड्यूरिंग कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 करके सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। वैबीनार वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय PIB एंड ROB रीजनल आउटरीच ब्यूरो, महाराष्ट्र एंड गोवा रीजन के दोनों काम करते हैं। उन्होंने दोनों ने इस जो कैंपेन है इसनों लॉन्च किया है, उसनों ऑर्गेनाइज करवाया, फाइंडिंग द लाइट इनसाइड मेंटल वैलबींग एंड द पैंडमिक। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू तो मतलब इंडिया ने रिसेंटली एक्सपोर्ट किया है, वैसे तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है, प्लस किस कंट्री को कर रहे हैं तो उसके नाल इंटरनेशनल पॉइंट भी बन जाता है। अ शिपमेंट ऑफ 1.2 मैट्रिक टनस ऑफ फ्रैश जैक फ्रूट, जो जैक फ्रूट्स होंगे ने ना, तो उन्होंने 1.2 मैट्रिक टनस की क्वांटिटी आप एक्सपोर्ट किया रिसेंटली। त्रिपुरा तो आप कर रहे हैं इसनों एक्सपोर्ट किस कंट्री के लिए, मतलब किस कंट्री के लिए शिपमेंट भेजी गई है। सो जी कंट्रीज हैगी जिसनों आप शिपमेंट भेजी है वो एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप की कंट्री है, तो वो कंट्री का नाम वो है लंडन। लंडन के लिए आप इस टाइम इन्हों शिपमेंट की 1.2 मैट्रिक टनस ऑफ जैक फ्रूट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अ शिपमेंट ऑफ 1.2 मैट्रिक टनस ऑफ फ्रैश जैक फ्रूट वॉज एक्सपोर्टेड फ्रॉम त्रिपुरा टू लंडन। त्रिपुरा तो भेजा गया, मतलब त्रिपुरा जोड़ा कि अपने नॉर्थ ईस्टर्न एक स्टेट हैगी आ, उतों ये जी शिपमेंट आ करी गई आ। जैक फ्रूट्स जोड़े सोर्स किए गए त्रिपुरा के एक कृषि संजोगिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उतों ये ले गए। एंड ये अपीडा की जी कि अपने एग्रीकल्चर के लिए एक काम करने वाले एक अथॉरिटी जिसका नाम है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसैस्ड फूड्स प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डिवेलपमेंट अथॉरिटी। तो उसने पहला प्रोजेक्ट हैगा है
which was pack house to for export to European Union, which was approved on May 2021। मतलब अपीडा जी आ पहला प्रोजेक्ट है टू यूरोपियन यूनियन, जिस दे अंडर 1.2 मैट्रिक टनस ऑफ जैक फ्रूट्स जोड़े ने आप त्रिपुरा तो एक्सपोर्ट किए लंडन के लिए। सो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू तो प्लस इकोनॉमी की भी न्यूज़ होगी, प्लस थोड़े लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया अपीडा। अपीडा की फुल फॉर्म एग्रीकल्चरल एंड प्रोसैस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डिवेलपमेंट अथॉरिटी। जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होंगे ने या फिर प्रोसैस्ड प्रोडक्ट्स होंगे आ उन्होंने एक्सपोर्ट करने लिए ये जी अथॉरिटी काम करती है, जिसका नाम है अपीडा। नैक्सट तो लास्ट क्वेश्चन अज का, ये इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फरजाद बी जांट गैस फील्ड हैगी सी, इसनों शुरू इंडिया ने किया सी, मतलब इंडिया ने इस गैस फील्ड नूं इनिशिएट करने का काम किया, फाइंड आउट करने का काम किया, बट नाउ इंडिया के हाथ चों ये प्रोजेक्ट चला गया है। तो ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ से चल रहा, ये किस कंट्री के लोकेटेड हैगी है फरजाद बी गैस फील्ड लिमिटेड। सो ये जी हैगी फरजाद बी गैस ये है ईरान की पर्टिकुलर एक गैस वाली हैगी आ, मतलब जगह सी जो गैस, क्योंकि आपको पता है ओशन वाले रीजन चों जी गैस वगैरह निकलती है, अलग अलग मिनरल्स वगैरह निकलते हैं, तो गैस के लिए काम करता सी इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, बट नाउ ईरान ने इस प्रोजेक्ट को अपने इंडिया तो खो के अपने एक डोमैसटिक कंपनी को दे दिता, बिकॉज कुछ टाइम पीरियड तो जोड़े ये रिलेशनस ने काफ़ी खराब चल रहे हैं। एक टाइम पर ईरान अपने इंडिया का सब तो वड्डा एक्सपोर्टर हुंदा सी ऑफ ऑयल, बट उस तो बाद की होया यूएसए ते ईरान के आपस कोई टकराव हुई, यूएसए ने ईरान ते सैंक्शनस लगाते, प्लस ये भी कहा कि अगर कोई कंट्री ईरान के नाल व्यापार करेगी तो उन्होंने भी सैंक्शनस लग जाएंगे, जिस की वजह करके इंडिया ने ईरान के नाल थोड़ा अपना जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम है उसनों घट करता। वो करके जी काफ़ी होर कंट्रीज़ ने भी इस तरह काम किया कि ईरान साइड पर करता, जिहदे करके ईरान जी कंडीशन है वो बहुत वर्स्ट हो गई। तो उस टाइम पर चाइना एक इदां की कंट्री सी जिन्हें ईरान की हैल्प की है, तो नाउ ओबवियसली चाइना की बैकिंग से ही काम करेगा ईरान। तो इस टाइम पर उन्होंने ये जोड़ा प्रोजेक्ट है इंडिया तो लैके अपनी सेल्फ एक डोमैसटिक कंपनी है उसनों ही दे दिता। सो ये जोड़ा प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या, फरजाद बी जाट गैस फील्ड, किस कंट्री दी है, वो है ईरान की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वर्थ यूएस जोड़े अपने डॉलर्स है 1.78 बिलियन विद पेट्रोपर्स ग्रुप फॉर डिवेलपमेंट ऑफ फरजाद बी गैस। हुण जी कंपनी है ना जिसका जो कि ईरान की उसका नाम है पेट्रोपर्स ग्रुप फॉर डिवेलपमेंट। और ONGC विदेश लिमिटेड पहला काम कर रही सी, ONGC जी इंडिया की कंपनी है वो काम कर रही सी 40% जो उन्होंने पार्टिसिपेटिंग इंटरस्ट हैगा सी ये, बट ना उन्होंने तो ये प्रोजेक्ट आ वो लैके उन्होंने अपनी लोकल कंपनी को देता, ईरान की ही डोमैसटिक कंपनी ने देता। तो इंडिया के वास्ते एक ह्यूज लॉस है, इंडिया की फाइंड आउट की गई चीज़ से हुण कोई होर काम करेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते सी अज की डेट के लिए वो आप सारे डिस्कस कर रहे हैं। सो कल के सैशन में मिलेंगे कुछ होर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नाल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।